are extending a little bit today. और मैं जानता हूँ कि हम कुछ देरी से चल रहे हैं, But I promise you we are finishing on time. पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हम समय पे समाप्त करेंगे, God's time. परमेश्वर के समय पे। Hallelujah. So once again I welcome everyone in the name of our Lord Jesus Christ. फिर एक बार मैं यीशु मसीह के नाम से आप सभी का स्वागत करता हूँ। You know, it's a privilege to serve Jesus. ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम परमेश्वर यीशु मसीह की सेवकाई करते हैं। Just like every week we had a busy week. और हर एक सप्ताह के समान जो है एक बिजी वीक हमारा गया, But God has been good to us. पर परमेश्वर हमारे लिए महान है। Tell your neighbor God is here. परमेश्वर यहाँ पे है। Come on. Tell your neighbor God is here. पड़ोसी से कहे कि परमेश्वर यहाँ पे है। Hallelujah. If your neighbor is not saying, he doesn't believe that God is here. अगर आपका पड़ोसी नहीं कह रहा है तो शायद से वो विश्वास नहीं करता। Hallelujah. And if we don't believe God is here, अगर आप ये विश्वास नहीं करते कि परमेश्वर यहाँ पे है, be at home. तो घर पे बने रहो। घर पे बने रहे. Wow, what a Okay, praise God. So we are talking on a topic. On Wednesday we started off about a topic of mental health. और बुधवार को हमने एक टॉपिक शुरू किया था प्राण की मानसिक समस्या, Hallelujah. Mental health. मानसिक स्वास्थ्य And about the soul strength. और प्राण की सामर्थ्य के बारे में। We see the power of the spirit. हमने देखा कि आत्मा की एक सामर्थ्य We होती है, see the bodily strength. हमने देखा शारीरिक एक सामर्थ्य होती है, But how we are supposed to have a soul strength? पर हमारे प्राण की सामर्थ्य कैसे होनी चाहिए। How many of you seen Wednesday service? कितनों ने बुधवार की सभा को देखा? 3-4 people. Okay, all right. So I will just give you a summary quickly because we have less time. और क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है तो मैं आपको जल्दी से जो है बीती बातें जो बताना चाहता People हूँ। of God, mental health is one of the most talked topic in today's community and society. और मानसिक स्वास्थ्य जो है ये बहुत बड़ा एक टॉपिक है आजकल की इस जिंदगी में। You know, people are spending a lot for treatment of mental health. और बहुत से लोग जो है बहुत से पैसे गंवा रहे हैं अपने खुद के मानसिक स्वास्थ्य को ठीक करने के You लिए। can see many YouTube videos, many Instagram reels about mental health. और बहुत से आपको YouTube के वीडियो दिखेंगे, Instagram के रील्स दिखेंगे मानसिक स्वास्थ्य को लेके। You know, and the medicines for mental health are so dangerous sometimes that you know it's like a heavy drugs. और ये मानसिक स्वास्थ्य के जो दवाइयाँ है ये सबसे बड़े खतरनाक और बहुत डेंजरस है कि वो आपको एक ऐसे ड्रग्स के समान। People have certain thoughts, certain emotional breakdown. Suddenly the mood swings and everything. All sort of things are happening. और बहुत से लोग ऐसे जो है भावनात्मक रूप से जो है टूटे हुए हैं और जल्दी से गुस्सा हो जाते हैं, ऐसे बहुत सी चीजें हो रही हैं। Sometimes when the doctors are prescribing those medicines have a side effects of people sleeping for more than 20 hours. और कुछ डॉक्टर्स जो ऐसी दवाइयाँ देते हैं इस बीमारियों के ऊपर वो इतने डेंजरस होते हैं कि लोग लगभग 20 घंटे के लिए सो जाते हैं। These medicines are equal to drugs, like the actual drugs kind of. और ये जो दवाइयाँ होती है लगभग ड्रग्स के समान होते I हैं। remember one actor was giving an interview and he said that he consumed drugs and he woke up after 3 days and his maid servants thought that he is dead. और यहाँ पे बहुत से ऐसे मतलब मैंने एक एक्टर का इंटरव्यू देखा था जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने ड्रग्स लिए थे और लगभग 3 दिन के लिए सो गया था और उनके जो दास लोग हैं, उनके जो नौकर हैं, उनको ऐसा लगा कि ये मर चुका है। People of God, I want to tell you, if your mind is not well, your life is not well. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपका मन ठीक नहीं है तो आपका कुछ भी ठीक नहीं If your रहता। mind is not healed, your life is not healed. अगर आपका मन चंगा नहीं है तो आपका कुछ भी चंगा नहीं हो Are सकता। you understanding? क्या आप Because समझ the रहे हैं? devil's strategy is to attack the mind first. क्योंकि शैतान की ये स्ट्रेटेजी है, उसकी योजना है कि वो आपके मन के ऊपर पहले हमला Because the करता है। spirit and the body, spirit is become one with the Holy Spirit. Body is a temple of the Holy Spirit. और क्योंकि हमारी आत्मा परमेश्वर के साथ एक है और हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, And that is why devil cannot destroy our body. Devil cannot play with the spirit because that's the seating place of the Holy Spirit. But soul is a seating place of emotions. That's what I told you. और इसी कारण से जो है यहाँ पे शैतान हमारे शरीर और आत्मा को जो है छू नहीं सकता, उनके साथ खेल नहीं सकता, लेकिन भावना जो है यहाँ पे जो प्राण है उसके ऊपर भावना जो है बैठती है। On people of God, that's why in the Garden of Eden, when the serpent was discussing with Eve, और इसलिए ईदन बाग में जब सांप जो है हवा के साथ बात कर रहा था, Eve was carried away because she heard the voice of devil
And devil was trying to play and manipulate her mind first. और यहाँ पे हवा जो इसकी शैतान की बातों में बहक गई क्योंकि वहाँ पे शैतान उसके मन के साथ खेल रहा था. Some people have the problems of, schizophrenic problem, anxiety problem, depression problem, and what not. Anything, they immediately get mentally affected. और यहाँ पे बहुत से लोगों को क्रिजोफेनिक जो है एंजाइटी डिप्रेशन का जो प्रॉब्लम रहता है और लोग जो है बहुत जल्दी तनाव में चले जाते हैं. People have got 95%, as I said on Wednesday, 95% of the mental health issues are connected to the demonic forces. और यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि लगभग 95% से जो है यहाँ पे जो बीमारियां होती है, मानसिक समस्या जो होती है, शैतान की ओर से होती है. 95% of the problems are connected to the evil demonic forces. और यहाँ पे जितने भी 95% के जो भी मानसिक समस्या होते हैं ये शैतान के सामत के द्वारा होती है. I told you from the word of God, Matthew 17 and verse 15. और जैसे मैंने वचन से बताया मत्ती इसका 17 अध्याय 15 वचन. Matthew 17 and verse 15, reading from Amplified, it says, Lord, have mercy on my son, for he is lunatic, which is moonstruck, and suffers terribly, for he often falls into the fire and often into the water. हे प्रभु मेरे पुत्र पर दया कर क्योंकि उसको मिर्गियाँ आती है और वह बहुत दुख उठाता है और बार बार आग और पानी में गिर पड़ता है. Hallelujah. Now this father is talking to Jesus that my son is behaving weird. और यहाँ पे ये पिता जो है अपने यीशु मसीह से कह रहा है कि यहाँ पे मेरा बेटा अलग व्यवहार करता है. He is concerned about his sick son. और यहाँ पे वो अपने बेटे के बारे में चिंतित है. And he is saying that suddenly he goes into the water, suddenly he goes into the fire, he falls, himself into these unwanted situations. और यहाँ पे वो ऐसे कह रहे हैं कि वो अनचाही जो परिस्थिति में उसको खुद को डाल देता है, वो खुद को पानी में कभी आग में डाल देता है. Some people sometimes they're good at one moment and the other moment they behave stupid. और कुछ लोग जो है एक क्षण पे बहुत अच्छे से व्यवहार करते हैं और दूसरे क्षण में वो बहुत बेवकूफी भरा काम कर देते हैं. Some people will sit with you for having meal, they will crack jokes like this, they will do like this, and the other moment they will be furious. और एक समय पे जो है वो आपके साथ खाना खाने के लिए बैठेंगे, आपके साथ मजाक मस्ती करेंगे, लेकिन एक बार में जो गुस्सा होके चले जाएंगे. And you will wonder what's wrong with this person. This person was so good 5-10 minutes back. और आप ये सोच में पड़ जाते हैं 5-10 मिनट पहले ये बहुत अच्छे से बात कर रहा था. I don't know how many of you have noticed this. मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोगों ने इसे नोटिस किया. You'll be like, hey, man, this man was so good in the morning. We had breakfast, and now what happened when he picks up the phone? He's talking so rude to me. और आप ये सोचते होंगे कि हमने साथ में ब्रेकफास्ट किया है, नाश्ता किया, लेकिन फिर भी अभी कॉल किया तो ऐसे बात कर रहा है. What happened? 12 क्यों बजे तेरे चेहरे पे? Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? Have you faced this or are you the one? क्या आपने ऐसे लोगों को देखा या फिर आप उनमें से हो? I'm sure the second is not the option. You must have faced such people. आपने ऐसे लोगों को देखा होगा. Hallelujah. Now when Jesus encountered this, और जब यीशु मसीह ऐसे लोगों से मुलाकात, he did not say to that child, Lord, sit child, I will counsel you for 20 minutes. और उन्होंने ऐसे नहीं कहा कि बेटे तू बैठ जा मैं तेरे लिए काउंसलिंग करूंगा. You should read Psalms 23 1 hour, Psalms 25 2 hours, सुबह के 2, रात को 2, शाम को 2. He did not say like that. उसने ये नहीं कहा कि तुम्हें भजन संहिता जो है सुबह को पढ़ना है, 2 बार इससे पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, ऐसे नहीं कहा उसने. He just said, come out right now. उसने कहा निकल जा यीशु मसीह के नाम He से. casted out that demon. उसने उसे बाहर निकालो शैतान को. Sometimes we have to discern how every problem is not dealt same way. और यहाँ पे हमें समझना जरूरी है कि हर एक समस्या जो एक समान नहीं होती. Understanding? क्या आप समझ रहे हैं? People of God, you cannot use the same recipe for all cuisines. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप एक रेसिपी को चाहे हर एक प्रकार के डिशेस के लिए इस्तेमाल नहीं आप कर जिस सकते. तरीके से जलेबी बनाते उसी तरीके से बिरयानी नहीं बना सकते. वो बिरयानी नहीं होगा फिर. उसी प्रकार यीशु भी हमें सिखाता है कि हर एक चीज के लिए एक जैसा पैटर्न यूज नहीं करना है. If you find this stupidity around you, अगर आपको ये बेवकूफी भरी चीजें आपके आगे or इर्द if गिर्द you लगती हैं, are in this stupidity, या फिर आप इस बेवकूफी में हो, you need to deal with this. तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ आपको इसका सामना करना है. Because this mood swings and all, I understand for some time, but when you are having this constant switches of your moods, a constant change in the behavior, something is wrong. और मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर आपकी भावना जो है कुछ कुछ समय के लिए जो है बदलता है, मैं समझता हूँ उस बातों को, लेकिन अगर वो हर बार हो रहा है तो आपका इसका सामना करना है, कुछ तो गड़बड़ है. Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? People of God, if you're constantly into depression all the time, और अगर आप हर बार जो है डिप्रेशन में चले जाते हैं, no matter some good news comes, still you'll, हाँ okay, हमेशा चेहरे पे 12 बजे है.
तो वो शैतान का 12 बजाना जरूरी है. Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? Then you are spiritually constipated then. तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपकी आत्मिक रूप से पेट खराब है. And then when you're constipated, it reflects on your face. ये आपके चेहरे पे दिखता है. क्या हो गया? पेट खराब है क्या? People of God, I want to tell you, परमेश्वर के लोगों को मैं आपको बताना चाहता हूँ, come out of this. इससे बाहर निकलो. Come out of this. इससे बाहर निकलो. People of God, because when the enemy cannot attack anything, he will attack the mind. क्योंकि जब शत्रु किसी भी चीज के ऊपर हमला नहीं करता तो वो मन के ऊपर हमला करता And है. as I'm speaking, today is a day of deliverance for you. और जैसे मैं आपसे बता रहा हूँ, ये आपका छुटकारे का दिन है. Matthew chapter 4 and verse 24. I want to go fast. Matthew chapter 4 and verse 24. मत्ती इसका 4 अध्याय और 24वां वचन. Again, this scripture speaks about the same issue. और And यहाँ- this fame went throughout all Syria, and they brought unto him all sick people that were taken with divers disease and torments, and those which were possessed with devils, and those which were lunatic. Again, those which were possessed with devil and lunatic. It is the connection over here. और यहाँ पे दिखाता है एक जुड़ाव है इन वचनों में कि यहाँ पे जो लोग दुष्ट आत्मा से पीड़ित थे और जिनको मिर्गी आती है. Hallelujah. People of God, I told you this on Wednesday. और ये मैंने बुधवार को आपसे बांटा था. Christians cannot be possessed with the demon, but sometimes they can be oppressed with the demons. और यहाँ पे मसीह लोग जो है दुष्ट आत्मा से जो है पीड़ित नहीं हो सकते, लेकिन उनके प्रभाव में आ सकते हैं. Yes or no? Sometimes, I gave an example on Wednesday. और कभी कभी मैंने उदाहरण दिया था वेडनेसडे को. If anyone doesn't greet you properly after the service, अगर सर्विस के बाद कोई आपको ठीक से ग्रीट नहीं करता, वहां से आपके प्रेज लॉर्ड नहीं करता, people get offended. तो लोग बुरा मान जाते हैं. Yes or no? हाँ You ना? know, if in the function अगर कोई फंक्शन में you don't get good sari, अगर आपको अच्छी साड़ी नहीं मिलती, उसको अच्छा वाला मिला, मेरे को ऐसा वाला क्यों मिला? Yes or no? Especially it happens in Maharashtra in weddings. और ये ज्यादातर महाराष्ट्र की शादियों में होती है. तिला कुठली दिली बघू बघू बघू. तुमच्या लोकांना तुम्ही चांगली चांगली काढून ठेवता का? Are you understanding? I'm giving you the small examples. मैं बस आपको उदाहरण दे रहा हूँ. For students also sometimes in college in their academics. और बहुत बार स्टूडेंट्स में भी जो जब उनके कॉलेज में फिर स्कूल में रहते हैं, When the faculty is praising one person and then you feel like, oh, only I think this is chamcha of teacher. जब कोई टीचर एक बच्चे की जो है तारीफ करते जा रहे हैं और आप दूसरों को लगता है कि ये लगता है टीचर का चमचा है. Yes or no? How many students here? Yes? You guys are too holy, I think so. It happens. ये होता है. It happens. ये होता है. People of God, when it happens, sometimes it's fine. और कभी कभी अगर ये होता है तो ठीक बात है. But when it becomes a habit पर अगर ये आपकी आदत ही बन जाती to है be offended all the time, कि आप जो है बुरा मान जाते हो हर एक समय में, or every time, you just need one puski in your balloon and you get. आपके गुब्बारे में सिर्फ एक टिचकी लगनी चाहिए और आपकी हवा निकल जाती है. How many of you are like that? I know no one will raise your hand. This is very important, ये people बहुत of God. जरूरी बात है परमेश्वर की. You cannot be oppressed with the devil. और आप वहां पे जो है दुष्ट आत्मा से पीड़ित नहीं हो सकते, उनके द्वारा जो है प्रभावी नहीं हो सकते. And Mark chapter 5 verse 15, let's see this what the word of God says. मरकुस इसका 5वां अध्याय 15 वचन. I also gave you an example like how being oppressed with the devil can lead to suicidal thoughts. और मैंने ये उदाहरण भी दिया था कि अगर हम दुष्ट आत्मा से प्रभावी बन जाते हैं तो कैसे हम जो है खुदकुशी के कारण वहां पे बन जाते हैं. When they found Jesus, they saw the demonized man sitting there, properly clothed, and in his mind, seeing what had happened to the possessed man by many demons, the people became afraid. और जो हुआ था, लोग उसे देखने आए और यीशु के पास आकर वे उसको, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, अर्थात जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने और सचेत बैठे देखकर डर गए. Hallelujah. Now this man was possessed with 2,000 plus demons. और ये मनुष्य जो है लगभग 2000 से भी ज्यादा आत्माओं से पीड़ित था. How many? 2000 से भी ज्यादा. 2,000 plus. 2000 से भी ज्यादा. Now when this man is possessed with 2,000 plus demon, one common thing which he used to do every day is to cut himself. और जब व्यक्ति जो है दुष्ट आत्मा से पीड़ित था तो ये एक चीज करता था, हर एक दिन वो खुद को काटता He था. used No, the problem is there. And that is why
और उसी कारण से you know, habit of harming himself every day. वो खुद को जो है हर बार जो चोट चाया करता है। Many times और बहुत बार when the mind is in mess, जब कभी हमारा मन जो है गड़बड़ी में रहता है, people take stupid actions like cutting themselves. तो बहुत से लोग जो है खुद को काटने की सोचते हैं, You know, नस काटने की सोचते हैं, खुद को हार्म करने की सोचते हैं, खुद का खून दिखाते हैं अपने आशिक को। लेकिन जिस आशिक ने आपके लिए खून बहाया वो भूल जाते हैं। हेलो, आर यू क्या अंडरस्टैंडिंग? आप समझ रहे हैं? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पीपल ऑफ गॉड। ये बहुत जरूरी बात है परमेश्वर को। If you feel and compelled to do and take certain actions like this, अगर आपको ऐसे महसूस होता है और अगर आप सोचते हैं कि मुझे ऐसे करना चाहिए, I just did like this, and then I will take one picture and I'll put to him. मैं ऐसे ऐसे करूंगा, मैं फोटो लूंगा और उसको भेज दूंगा। I've seen such samples. मैंने बहुत से सैंपल्स देखे हैं। Nancy is laughing. Reply me. रिप्लाई करो। All of you are smiling. बहुत से लोग यहाँ पे मुस्कुरा रहे हैं। Let me not get into prophetic. Are you meeting or no? तुम मिल रहे हो या नहीं? Or else I have topaz. Topaz is what? Huh? अरे blade. Are you understanding? People of God, परमेश्वर के this लोगों, is nonsense. ये बेवकूफ वाली चीज है, Because the word of God says क्योंकि परमेश्वर का वचन he कहता was है possessed with demons and used to cut himself. वो दुष्ट आत्मा से पीड़ित था और फिर वो खुद को काटता So था। whenever you get such thoughts, तो जब कभी भी आपको ऐसे विचार आए you should know you are under the oppression of devil and you have to rebuke it in the name of Jesus. तो आपको समझना चाहिए कि आपको शैतान भरमा रहा है और आपको उसे धमकाना है यीशु मसीह के नाम Especially से। young people, I'm telling you this. खास करके नौजवान लोगों को बताना चाहता हूँ, You might go through these thoughts. आपको ऐसे विचार आ सकते These हैं thoughts might cross your mind. और ये विचार जो है आपके मन को क्रॉस करने की कोशिश But you have करेंगे, to just say, hey, hello, hata. Because I am with Jesus. क्योंकि मैं यीशु का। Hallelujah. And why suicidal thoughts? Because the moment Jesus casted out these 2,000 demons and they were casted into whom? Pigs. और जब कभी भी यहाँ पे खुदकुशी की विचार क्यों आते हैं? क्योंकि जब उस दुष्ट आत्मा को निकाला गया वो सुअरों में And the जाके गिरे। moment the demons were casted in the pigs, what did the pig do? They had breakfast over there? What did they do? और सुअर जब वहाँ पे दुष्ट आत्मा They से भर गए jump तो off क्या the किया? cliff from there. वहां से वो खाई में कूद गए, पानी में कूद गए। Are you understanding? Those demons controlled those pigs to suicide. और उस दुष्ट आत्मा ने जो है खुद वहां पे उस सुअरों को जो कंट्रोल किया कि वो खुदकुशी करे। That shows that the devils and the evil spirit controls animals also. ये दिखाता है कि दुष्ट आत्मा और शैतान जो है प्राणियों के ऊपर भी प्रभाव डालता है। Yes or no? Yes. Spirits control animals. और आत्माएं जो है जानवरों के ऊपर भी प्रभाव डालते हैं। Because that's why in the Old Testament when Daniel was in the den of lion, और इसलिए पुराने नियम में जब दानियल सिंह की गुहा में था, Daniel was not putting any mantra to control lions over there. दानियल कोई मंत्र नहीं बोल रहा था उनको वहां पे कार्य में It लाने was के the लिए। spirit of the Lord who was controlling lions over there. वहां पे परमेश्वर का आत्मा था जो वहां पे उस सिंह को कंट्रोल कर रहा Are था। you understanding? That's why I spoke on Wednesday that please put apply the blood of Jesus over your pets also. इसलिए मैंने आपको बुधवार को बताया था कि आप आपके जो पालतू जानवर है उनके ऊपर तेल लगा के अभिषेक करके प्रार्थना करें। Just don't say, oh how cute. Just put the oil also over them. और सिर्फ क्यूट करके उसके मतलब बुलाए नहीं, लेकिन उसके ऊपर प्रार्थना भी करें, Because sometimes Satan also looks cute. क्योंकि शैतान भी कभी कभी क्यूट दिखता है। Are you understanding? क्या आप समझ I रहे was हैं? watching one video on YouTube. और मैं एक वीडियो देख रहा था यूट्यूब पे। How many of you seen Passion of Christ movie? कितनों ने पैशन ऑफ क्राइस्ट मूवी देखी है? Passion of Christ. In that, there's a image of Satan, उसमें एक ऐसा चित्र दिखाया गया है शैतान का, and that image of Satan is like a woman over there, like a woman, bald women. और उसमें ऐसे दिखाया गया है कि एक ऐसी स्त्री है जो पूरी तरह से गंजी है। So the director of this movie is a person named Mel Gibson. और जो डायरेक्टर है जिनका नाम मेल गिब्सन है, Can we see that Passion of Christ? Yeah, not the movie, but the Satan. Then I was reading something. I did some research. और मैंने उसके ऊपर रिसर्च की थोड़ी बहुत। Why did they show women like this?
और मैं सोच कि मतलब ये स्त्री को ऐसे क्यों दिखाया है, Because that lady, if you see, that lady looks so beautiful. क्योंकि वो स्त्री जो है बहुत खूबसूरत दिखती है, But पर to give her that scary image little bit, उसको वो डरावना दिखाने के लिए her eyebrows were shaved off. उसके आईब्रोज निकाले गए, Her head was shaved off. उसके सिर के बाल मुंडवाए गए। Now whenever these directors make any such movies like Chosen or Passion of Christ and all, और जब कभी कोई ऐसे डायरेक्टर दिखाते हैं कोई चोजन या फिर पैशन ऑफ क्राइस्ट मूवी, see this. Can you see this? Imagine eyebrows on this woman. Won't she be pretty? अगर कोई इस स्त्री के ऊपर आईब्रोज होते तो कितनी अच्छी दिखती। Yes or no? Now I also researched one more thing. और एक और चीज के ऊपर रिसर्च किया मैंने, This person ये जो व्यक्ति है is actually 45 years old. ये 45 की उम्र का है, Looks like a baby. ये दिखने में बच्चे He's जैसा a है, 45 years old man. पर ये 45 इयर्स का है। Now, why did they show like this? ये ऐसे क्यों दिखाया है? Because devil will take something cute looking क्योंकि शैतान जो है कुछ क्यूट दिखने वाले या फिर good will take something good. और दिखा ऐसे अच्छा दिखने वाली चीज को कुछ अच्छी चीजों को लेकर उसको अपने हिसाब से मोल्ड करेगा और वो दुनिया के सामने प्रेजेंट करेगा और हम वहां पे फंस जाते हैं. That is the idea. Otherwise, this director would have shown devil with the two horns. या फिर ये एक ऐसे प्रकार का एक आइडिया होता है, या फिर ये डायरेक्टर जो है ऐसे दिखा तक सकता कि कोई व्यक्ति को दो सिंह है। तो शैतान दो सिंगों वाला नहीं है. Lucifer was one of the main angels. लूसीफर एक सबसे बड़ा मुख्य वहां पे स्वर्गदूत था। हाँ, हम लोग बोलते हैं ना क्या, you look like an angel. और You have to be careful then which angel. और लोग कहते हैं कि तुम एंजल के समान दिखते हो। You look like an angel, talk like an angel, walk like an angel. Which angel? If angel is watching, I'm not talking about you. There's a sister who watches from Assam. People of God. परमेश्वर के लोगों। Thanks. What I'm trying to tell you over here is, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि don't be foolish. कि आप बेवकूफ ना बने। It is very important for us to understand this. और ये बहुत जरूरी बात है हमें समझने की। There is a spirit behind most of the mental issues. और बहुत सी ऐसी दुष्ट आत्माएं होती हैं मानसिक समस्याओं के बारे में। But if you are dealing with this, पर अगर आप इससे जो है सामना कर रहे हैं, or if you are going through this, या फिर आप इसमें से गुजर रहे हैं, today the Holy Spirit is present here to deliver you from that. तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ पवित्र आत्मा यहाँ पे मौजूद है आपको छुटकारा देने के Every लिए। depression, हर एक डिप्रेशन, every anxiety, हर एक एंजाइटी, every pressure, हर एक तनाव, or constant mood swings, या फिर आपकी भावना बदलने वाली चीजें, every mental health problem. हर एक मानसिक समस्या, Say, Holy Spirit, come and take over my mind in the name of Jesus. हम कहेंगे पवित्र आत्मा तू और मेरे मन का ताबा ले ले। Holy Spirit, take over my mind. Take control of my mind. पवित्र आत्मा मेरे मन का तू ताबा ले ले। Say, I have a mind of Christ. कहे कि मेरा मन जो है यीशु मसीह का है। Come on, say this. मेरे पास मसीह का मन है. मेरे पास मसीह का मन I है। have a mind of Christ. मेरे पास मसीह का I मन have है। a mind of मेरे Christ. पास मसीह का My मन है। family has a mind of Christ. मेरे परिवार में मसीह का My मन है। children have a mind of मेरे Christ. बच्चों के पास मसीह का मन In the है। name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से। Amen. आमेन। Now I'll tell you और मैं आपको बताना चाहता हूँ how to keep your mind healthy. कि हम हमारे मन को कैसे स्वस्थ रख This सकते हैं। I did not preach on Wednesday. ये मैंने बुधवार को प्रचार नहीं किया था। First thing, सबसे पहली चीज to keep our mind healthy कि हम खुद के मन को स्वस्थ रखने के लिए is to renew our mind daily. कि हम हमारे मन को फिर से हर एक दिन नया करेंगे। Are you understanding? क्या समझ रहे हैं? Renew our mind daily. कि हम हमारे मन को नया करेंगे हर दिन। I want to tell you, people of God, परमेश्वर के लोगों मैं आपसे बताना चाहता हूँ, just like we brush our teeth daily, जिस रीति से हम रोज ब्रश करते हैं हमारे दांतों को, you have to renew your mind daily. तो आपको आपके मन को भी जो है नया करना है। Think of you not brushing your teeth for 3 days. सोचिए कि आप जो है आपके दांतों को 3 दिन से नहीं घिस रहे, When you stand in front of someone, और अगर आप किसी के सामने खड़े रह you जाते don't हो, need anointing to make them fall. तो आपको किसी को गिराने की जरूरत नहीं, अभिषेक की जरूरत नहीं है। अरे आपको अभिषेक की जरूरत नहीं गिराने के लिए. आपका ओरल अभिषेक उनको गिरा देगा. क्या आप समझ रहे हैं मेरी बात को? क्या आप समझ रहे हैं? This is very important, people of God. ये बहुत जरूरी बात है परमेश्वर के Same लोगों। way, if you and I don't renew our mind daily, अगर आप खुद के मन को हर दिन नया नहीं करेंगे, people of God, it is very important,
we will affect the people around us. तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हम दूसरों हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं उनको भी हम प्रभावित कर सकते हैं। It's like, for example, you had a bad mood before you sleep. उदाहरण के तौर पे आपका कोई गलत आपका मन था सोने You से had a पहले, bad mood, you had a bad fight or something. और आपका एक गलत झगड़ा You हुआ had किसी a के साथ, bad day. और आपका बुरा दिन गया, You sleep आप सो गए, and you get the dreams surrounding around that topic. और उस टॉपिक को लेके आपको कुछ स्वप्न आ रहे हैं, You get the same thing because you think while you sleep. और क्योंकि आप वैसे सोच रहे हैं वैसे आपको स्वप्न आ रहे हैं, Then devil will take that thought because you are thinking the same thing in your mind. और उस शैतान जो है आपके विचार को लेगा क्योंकि आप भी वैसे सोच रहे हो। And then they will put some masala and fabricate it and put that dream install in your mind software. तो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो उसके ऊपर थोड़ा मसाला लगा के सब चीजें लगा के जो है आपको वहाँ पे आपके मन में डालेगा, People of God, and then you wake up again, और जब आप फिर से वहां से उठोगे and then you have the same thing throughout the day what you saw. और आप जो है वैसे ही दिन को देखोगे जो आपने देखा, Now you are carrying forward what you had yesterday. और आप जो कल देखे उसे ही आप फिर से नए दिन में लेके चल रहे हो। I want to tell you और मैं आपको बताना चाहता हूँ how to renew your mind. हम आपके मन को कैसे नया कर सकते When you हैं। wake up in the morning, जब आप सुबह को उठते हो you have to wash your mind by spiritual soap, that is word of God. और आपको जो है खुद के मन को साफ करना है जो है परमेश्वर का वचन, You have to do the right declarations. और आपको सही डिक्लेरेशन करने हैं। That is why we are having morning prayer every day. इसलिए हम सुबह की प्रार्थना करते हैं हर दिन। Are you understanding? क्या समझ रहे हैं? Because the first point which we take in the morning prayer is to cancel the wrong dreams. सबसे पहला पॉइंट हमारे उस प्रार्थना में ये होता है कि हम गलत स्वप्नों को नकारते हैं। So we have to renew our mind every day. तो हमें हमारे मन को नया करना है हर एक दिन। Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? Tell your neighbor, renew your mind every day. अपने पड़ोसी से कहे अपने मन को नया करो। Replace your thoughts with the godly thoughts. हमारे खुद के विचारों को परमेश्वर के विचारों से बदलेंगे। Hallelujah. People of God, this is something which you need to do every day. और ये ऐसी चीज है जो आपको हर बार करनी है। Number 2 is prosper your soul. दूसरी बात कि हम खुद के आत्मा को समृद्ध करेंगे। 3 John chapter 1 and verse 2. तीसरे यूहन्ना इसका 1 and verse 2. पहला अध्याय और दूसरा वचन। 3 John, huh? तीसरा यूहन्ना। हे प्रिय, मेरी यह प्रार्थना है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति कर रहा है वैसे तू सब बातों में उन्नति करे और भला चंगा रहे। Hallelujah. तू सब बातों में क्या करे? उन्नति आत्मिक करे। उन्नति करे। Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health just as your soul prospers. Why it is mentioned prospering of soul? और यहाँ पे अपनी सारी चीजों को समृद्ध करना क्यों लिखा है? Prospering of soul. हमारे प्राण की समृद्धि को क्यों लिखा है? People of God, what does it mean? इसका अर्थ क्या है? God gave you new spirit, but the soul is same. ये इसका अर्थ यह है कि परमेश्वर हमें नई आत्मा देता है लेकिन प्राण वही है। What is it that the day you accept Jesus as your personal Lord and इसका Savior, मतलब क्या है कि जिस दिन आप यीशु मसीह का अपना उद्धारकर्ता मानते हो, you get a new spirit आपको नई आत्मा मिलती है because the Holy Spirit comes right now. क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर But आती the है। problem is पर समस्या ये है कि the soul is same. प्राण वही है। मतलब क्या है इसका? सोल में हमारी पुरानी आदतें हैं, सोल में हमारे इमोशंस है, सोल में हमारी यादों की बारात है। Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? मेमोरीज है, यादें हैं। स्पिरिट्स में मेमोरीज नहीं होता है, स्पिरिट्स में भावनाएं नहीं होती है। कहां पे होता है? प्राण में। सब जन बोलो प्राण। प्राण में ये सारी चीजें होती। तो जब हमें पवित्र आत्मा मिलता है तो हमें आत्मा नहीं मिल जाती है, लेकिन हमारे प्राण जो है वही है। इट्स लाइक नो मैटर यू वेयर अरमानी, भले आप अरमानी क्यों ना पहनो, नो मैटर यू वेयर एक्सपेंसिव सूट, भले आप सबसे बड़ा महंगा कपड़ा क्यों ना बट योर पहनो, हैंड फीट्स आर सेम। पर आपके हाथ पांव वही है। आपका हाथ पैर अरमानी का नहीं बन जाता है, वो चमड़े का ही रहता है। यस और नो? क्या समझ रहे हैं? आप सबसे महंगा परफ्यूम लगाओ, लेकिन आपका हाथ पैर वही रहने वाला है। तो जब आपको पवित्र आत्मा मिलता है तो आपकी आत्मा नहीं होती, लेकिन आपका प्राण वही रहता है। तो उस प्राण को गार्ड करने के लिए हमें सबसे पहली बात सही चीजों को आपके अंदर एंट्री देना जरूरी है।
How to do that? ये कैसे करें? For example, उदाहरण के तौर पे you are watching too much news. आप बहुत सी खबरों को देखते हो, It's बहुत okay to खबरों को watch news. अच्छी बात है कि आप It's खबरों को good देखते to be updated. हैं और ये अच्छी बात है कि आप खुद But को if you're update रखें। too much inclined and engrossed in news, today this accident happened, today now this new virus is coming, and this is coming, and that is coming, you are too much full, just filled by it. और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप खुद को जो है खुद से खबरों से भर देते हो और आप ये देखते हो कि यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे वो हो गया। So no matter you read the word of God, Jesus heals, but your mind reminds, hey, new virus has come. और भले ही आप कितना भी पढ़ लो कि यीशु मसीह चंगा करता है, लेकिन फिर भी आपके मन में यही चल रहा था कि नया वायरस आ रहा है करके। Hello. You read, God is your protector. और आप ये पढ़ते हो कि परमेश्वर तुम्हारा सुरक्षा करता है, And then you read, so many accidents happened last night. और बाद में देखते हो कि वहां पे बहुत से हादसे हो गए इस पिछले रात और आप में। भी घबराए घूमते रहते हो फिर। Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? You read the word, God has given me the spirit of boldness and courage. और आप पढ़ते हो कि परमेश्वर ने मुझे धैर्य का आत्मा दिया है, And you go and watch horror movies. और आप जाके हॉरर मूवीज देखते And हो लाइट बंद किया तो फिर ये लादी से वो लादी तक आने के वांदे हो जाते हैं आपके। हेलो, क्या आप समझ रहे हैं? आप लोग काफी साहसी लग रहे हो मुझे। There's a dialogue in one movie, झुंड में चलो, झुंड में चलो। Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? People of God, परमेश्वर के लोगों, you read the word, आप वचन को पढ़ते हो, you read something good, encouraging, positive, आप जो है बहुत अच्छी वचन को but पढ़ते हो, because your soul is full of some other things, क्योंकि आपका प्राण बहुत सी चीजों से भरा हुआ that है, soul is getting, the soul is overpowering what the spirit is having. तो यहाँ पे वो प्राण जो है यहाँ पे जो चीजें हैं उसको ज्यादा बढ़ावा देता है। Are you understanding? You have to guard your environment. आपको आपके परिवार उनका जो है यहाँ पे सुरक्षा करना You है, have to guard your soul. आपके प्राण को आपकी सुरक्षा You करना है, also have to guard yourself by being surrounded with the right set of people. और आपको खुद की सुरक्षा करना है सही लोगों से। Are you understanding? That is the number 2 point on how to have a healthy mental health. और यहाँ पे दूसरा मुद्दा है, दूसरा पॉइंट है कि हम कैसे स्वस्थ जीवन को What is first one? सबसे पहला क्या है Renewing your mind कि हम खुद के daily. मन को तैयार करें, नया करेंगे हर दिन। Number 2, दूसरी बात prosper your soul. कि हम खुद के प्राण को प्रॉस्पर करेंगे, समृद्ध करेंगे। And number 3, तीसरी बात, pray in the spirit. हम आत्मा में प्रार्थना करेंगे। Very, very important. सबसे ज्यादा जरूरी, Very important. सबसे ज्यादा जरूरी। People of God, you and I need to upgrade your tongues. हमें और आपको जो है हमारी अन्य भाषाओं को अपग्रेड करना है। हमारी जबान को अपग्रेड करना है, क्योंकि अगर आप अन्य भाषा में बात नहीं कर सकते तो आप आपकी जबान को अपग्रेड नहीं कर रहे हैं। There are many false teachings nowadays और ऐसे बहुत सी फॉल्स टीचिंग्स हो रही है on YouTube, on Instagram, that speaking in tongues is nonsense. और ऐसे कहते हैं कि अन्य भाषा में बात करना ये बेवकूफी भरी चीज है। If you believe that, अगर आप ये विश्वास करते हो उसके then ऊपर, let me tell you, devil is successful on using that agenda on you. तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि शैतान का वहाँ पे जो है स्ट्रेटेजी जो है समृद्ध हो जाती है, क्योंकि वो उसके ऊपर आप विश्वास करते हैं। Because the word of God clearly says, क्योंकि परमेश्वर का वचन साफ रीति से कहता है, speaking in tongues edifies one. यहाँ पे ऐसे कहा जाता है कि अगर आप अन्य भाषा में बात करते हैं तो आप खुद को बढ़ाते हो, आपको आपकी आत्मा की उन्नति होती है। क्या आप समझ रहे हो मेरी बात? क्या समझ रहे हैं? And if you despise speaking in tongues, अगर आप अन्य भाषा में बात करना बंद कर देते हैं, उसे नकारते हैं। speaking in tongues is one of the gift of the Holy Spirit. अन्य भाषा में बात करना एक वरदान है पवित्र आत्मा का। That means you are despising the Holy Spirit. इसका मतलब यह है कि हम पवित्र आत्मा को नकार रहे हैं, तुच्छ मान रहे हैं। तुच्छ मान रहे हैं। And if you are despising Holy Spirit, और अगर आप पवित्र आत्मा को तुच्छ मानते हैं, our hero Jesus himself said, you talk about me, it's fine. You talk about the Holy Spirit, may God help you. हमारा यीशु मसीह भी ये कहता है कि अगर तुम मेरे बारे में कहते हो तो ठीक बात है, लेकिन यहाँ पे तुम अगर पवित्र आत्मा के बारे में कहते हो तो परमेश्वर तुम्हारा देख ले। If any man of God
ministering in the Holy Spirit, gift of the Holy Spirit. अगर कोई परमेश्वर के दास और परमेश्वर के वरदानों के बारे में बता रहा And है if you're talking against that also, और अगर आप उसके विरुद्ध में बात कर रहे हो you are indirectly talking against the Holy Spirit. तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप पवित्र आत्मा के विरुद्ध बात करते हैं Then only God can help you. तो सिर्फ परमेश्वर आपकी सहायता करे। So be careful. तो मैं आपसे कहता हूँ Be ध्यान careful. रखें, सावधान रहें। In the last days, आखिरी दिनों में there'll be many things which will try to play with your mind. ऐसी बहुत सी चीजें होगी जो आपके मन को खेलेगी। Everything on internet is not good for your health हर एक चीज जो इंटरनेट पे है वो आपकी स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है। because it is sometimes full of junk. कभी कभी वो बहुत से कचरों से भरी होती है। You know, sometimes when we go on a cow gully, everything on the street is not good for your health. जब कभी आप खाऊ गली में जाते तो हर चीज आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं होती। You and your parents say sometimes, oh, what kachra you are eating. Sometimes you have to be careful what kachra you are listening. और कभी कभी आपके माता पिता कहते हैं कि क्या कचरा खा रहे हो, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि हम क्या कचरे को सुन रहे हैं। People of God, you and I need to build your vocabulary, spiritual vocabulary. और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमें हमारे बोलने की जो क्षमता है उसे बदलना है, उसे बढ़ाना है। And when your spirit is strong, और जब हमारा आत्मिक सामर्थ हो जाता है then the spirit will become havi on your soul. तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि तो फिर हमारा जो आत्मा है हमारे प्राण के ऊपर जो है प्रभावी बन जाता है। Yes, are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? Are you listening? क्या आप सुन रहे Or is हैं? it a gibberish for you? This is very important, people of God. तो ये बहुत जरूरी बात है So परमेश्वर के we लोग। have to renew your mind daily. तो हमें हमारे प्राण की If you हमेशा नया don't करना है। renew your mind daily, it's like you're not taking bath daily in the spirit. अगर आप हमारे अपने प्राण को हर दिन नया नहीं करते तो इसका मतलब यह है कि हम हर दिन जो है वहाँ पे स्नान नहीं Then करते। your soul will stink. तो मैं आपसे कहता हूँ तो फिर आपका प्राण वहाँ पे जो है गंदी बदबू करेगा। And then people will be slowly like, oh, I don't want to be with this person. This person is always full of, mood swings. तो यहाँ पे लोग ऐसे कहेंगे कि मैं इस व्यक्ति के साथ नहीं रहना चाहता क्योंकि इसका भावना हर बार बदलता रहता I है। don't want to be associated with this person because this person always talks negative. और मैं इस व्यक्ति के साथ जो है बैठना नहीं चाहता क्योंकि हर बार ये गलत बातों को कहता है। So it doesn't matter you are wearing the most expensive perfume, still people will not be associated with you. तो भले ही आप कितने भी अच्छे परफ्यूम को क्यों ना पहने लेकिन फिर भी लोग आपके पास It नहीं doesn't आएंगे। matter how many jewelries you're wearing, from you become a golden man or Bappi Lahiri, people will be still not be associated with you. तो भले ही आप कितना भी सोना क्यों नहीं पहने लेकिन फिर भी लोग आपके पास नहीं आएंगे Because your soul stinks. क्योंकि आपका प्राण से बदबू आती है। Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? This is very important, people of ये God. बहुत जरूरी बात है If you're परमेश्वर filling yourself with just junk of the internet and the world, की। अगर आप खुद को जो है सिर्फ इंटरनेट से खुद को भरते हैं, if you're filling yourself with the junk of everything which is coming, you're just feeding yourself. और खुद को सिर्फ आप हर एक कूड़े कचरे से जो भर रहे हो हर You दिन, will end up in confusion. तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ आप खुद को कंफ्यूजन में If you डालेंगे। keep getting offended all the time, अगर आप खुद बार बार जो है दुखी हो जाते हो if किसी you are चीज से, always offended all the time, और अगर आप किसी चीज से हर बार दुखी हो जाते you हो, have to discern that this is not from God. This is not from the Holy Spirit. तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ आपको ये समझना जरूरी है कि ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। Hallelujah. Hallelujah. Are you understanding? क्या आप समझ रहे Has हैं? this, does it help you, church? क्या ये आपको सहायता दे रहा है परमेश्वर के लोगों को? Let's close our eyes right now आइए परमेश्वर के लोग अपने आंखों को बंद करेंगे इस समय and tell the Holy Spirit, और पवित्र आत्मा से हम कहेंगे I want to renew my mind daily. मैं मेरे मन को हर दिन नया करना चाहता I हूँ। want to renew my mind daily. मैं मेरे मन को हर दिन नया करना चाहता Oh, हूँ। Rika Basanta Lara Bashakandere. Come on, church, speak in tongues right now. आइए परमेश्वर के लोग अपने अन्य भाषा में बात करेंगे इस Oh, समय। Ribalarama. I don't want to be victim of being oppressed by demon. मैं यहाँ पे कोई पीड़ित नहीं होना चाहता कि हम परमेश्वर दुष्ट आत्मा से पीड़ित बन जाए। I want to be filled with the Holy Spirit. मैं यहाँ पे पवित्र आत्मा से भरना चाहता हूँ। I want to be filled with the Holy मैं Spirit. पवित्र आत्मा से भरना चाहता हूँ। Come on, church. Come on, church. Open your mouth right now. आइए कलीसिया के लोग परमेश्वर की ओर देखेंगे। Open your mouth right now. परमेश्वर के अपने मुख को खोलेंगे इस I समय। don't want single person who are quick, who are so easily, you get offended. मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसे व्यक्ति यहाँ पे बने रहे जो जल्दी से जो है बुरा मान जाता है। Because if you are having that nature in your career, अगर आपको ऐसा कोई व्यवहार है आपके करियर में, it's like your boss speaks rude to you, you leave job. और ऐसे बन जाता है कि अगर आप कोई बॉस आपसे ठीक से बात नहीं करते तो आप जॉब छोड़ देते हैं, No, you will not land up anywhere then. तो आप वहाँ पे कहीं भी स्थिर नहीं बनेंगे। It's like, you are sitting with your friends, if someone makes fun of you, you immediately get offended. You will not have anyone with you then.
इसका मतलब ये है कि आप दोस्तों के साथ बैठे, कोई आपका मजाक उड़ाता है तो आप वहां से चले, तो कोई भी आपके साथ नहीं रहेगा। If anyone is not greeting you after the church, you become offended and you leave the church, then you will not be part of any church like this. तो मैं आपसे कहता हूँ कि अगर आप कलीसिया में हो और कलीसिया में कोई आपको प्रेज लॉर्ड नहीं करता और आप कलीसिया छोड़ दे, तो आप किसी भी कलीसिया के भाग नहीं बन सकते। Husband, sometimes his mood is off, or wife's mood is off, and sometimes they talk something different, and you are offended easily. How will your married life go ahead then? और पति पत्नी में कुछ बात बन जाती है और आपका जो है भावना वहाँ पे बदल जाते हैं, और यहाँ पे आप फिर किसी भी जीवन शारीरिक वहाँ पे जो है शादीशुदा जीवन में ठीक नहीं रह पाएंगे। I want to tell you, people of God, मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर के don't लोगों, let enemy play with your mind. शत्रु को आपके मन के साथ खेलने मत दो। Today we are rebuking those things in the name of Jesus. हम उन सारी चीजों को धमका रहे यीशु मसीह के नाम In the से। name of Jesus. यीशु मसीह के नाम In the से। name of यीशु Jesus. मसीह के नाम I से cover every person with the blood of Jesus. मैं हर एक व्यक्ति को यीशु मसीह के लहू से ढकता हूँ। I cover every person with the blood of Jesus. मैं हर एक व्यक्ति को यीशु मसीह के लहू से ढकता हूँ। Every spirit of offense. हर एक बुरेपन की आत्मा, बुरे मानने की आत्मा, Everything which is trying to play with the minds of people. हर एक चीज जो लोगों के मन के साथ खेलने की कोशिश करती है, I rebuke it right now. मैं तुम्हें धमकाता हूँ यीशु I मसीह के नाम से। cancel it right now. मैं उसे नकारता हूँ यीशु मसीह के नाम से। Every mental health problem, which are trying to put people into depression, anxiety. हर एक मानसिक समस्या की समस्या जो लोगों को डिप्रेशन में डालने की कोशिश करती है, The people who are people who are being stressed out all the time. और लोग जो है बहुत से लोग स्ट्रेस में रहते हैं, The people who are scared all the time. और जो लोग बहुत ज्यादा भयभीत रहते हैं, They are scared of small things. बहुत से लोग जो है भयभीत हो जाते हैं छोटी छोटी चीजों से। People having suicidal thoughts. लोगों के खुद खुशी के विचार आते हैं। I rebuke that enemy in the name of Jesus. मैं उस शत्रु को धमकाता हूँ यीशु मसीह के नाम से। Come on, church. I want you to stand up right now. आइए कलीसिया, मैं चाहता हूँ कि आप खड़े हो जाए इस समय, Because this is the day of deliverance for you. क्योंकि इस दिन है आपका छुटकारे का। Oriba kalanama shandoloro boranamas. Libra nama sankororo bolamas sikendere. Rebalanama shandoloro boranama sakalamante. Tell the Lord that, Lord, I need physical, spiritual and soul strength, oh Father God. आइए परमेश्वर से कहें, परमेश्वर मुझे जरूरत है परमेश्वर आत्मिक, शारीरिक और परमेश्वर प्राण की सामर्थ की। I renew my mind daily. मैं मेरे मन को हर दिन नया करूंगा। Lord, I shall prosper my soul by not associating with the wrong set of things. और मैं खुद को जो है बुरे लोगों से जो है मिल के अपने मन को जो है नाश नहीं करूंगा। By keeping myself away from the negative stuff. और मैं खुद को नकारात्मक चीजों से दूर रखूंगा। And also will be praying in the spirit every day. और मैं आत्मा में हर दिन प्रार्थना करूंगा। Come on, make this covenant with God right now. और ये वाचा हम परमेश्वर के साथ बांधेंगे। Make this covenant with God. इस वाचा को हम परमेश्वर के साथ बांधेंगे। He is your Father. वो आपका पिता है। That has to be daily communion with Him. ये आपका हर दिन का वाचा होना चाहिए। Daily communion with Him. ये आपकी हर दिन की संगति होनी चाहिए। Daily communion with Him. ये हर दिन की संगति होनी Say, I चाहिए। shall start my day right. और मैं मेरे दिन को अच्छे से And I शुरुआत shall करूं, finish my day right. और मैं दिन को अच्छे से समाप्त Come करूंगा। on, come on, come on. And I shall have a victorious days all the days of my life. और मैं मेरे जीवन के हर एक दिन में विजय से भरकर रहूंगा। Come on, come on. As the new week comes, I shall start my week right. Hallelujah. और जैसे एक नया दिन शुरू हो जाएगा, मैं अपने विजय को शुरू करूंगा। Ori baba 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 sakala ramande. Ri baba mama mama sandala nama. Ori baba mama mama sandolo romorina nama shakala ramande. Likala ramana nama sandoro. People of God, many times when you don't start and end your day right, और बहुत सी बार जब हम अपने जीवन को सही रीति से शुरुआत नहीं करते, समाप्त नहीं करते, no, day. You don't start your day or end your day right. और जब कभी हम हमारे दिन को सही रीति से शुरू नहीं करते और समाप्त नहीं करते, The problems gets carried away and it gets piled up every day. तो मैं आपसे कहता हूँ हर एक दिन वो एक समस्या नई खड़ी हो जाती है। And then your soul starts stinking. तो मैं आपसे कहता हूँ तो फिर आपका प्राण वहां पे बदबू मारना शुरू करता है। I want to tell you, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, God has given us that spiritual soap to wash every day. परमेश्वर ने हमें वो आत्मिक साबुन दिया ताकि हम उसे धो सके। Use that soap every day. उस साबुन का इस्तेमाल करें हर Use the दिन। word of God. परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल कीजिए। Use the right the words, declarations every day. हर एक डिक्लेरेशन, हर एक कबूल करे को जो है वहां पे इस्तेमाल करेंगे। I am telling you, church, मैं आपसे कहना चाहता हूँ पर कलीसिया, God is going to do something powerful.
परमेश्वर कुछ महान करने वाला है। The gears will change. वो गियर्स बदल रहे हैं। You know, do not allow any evil spirit to work in your life. कोई भी दुष्ट आत्मा को आपके जीवन में कार्य करने Because मत I दो। say that no evil spirit is powerful than you. जैसे मैंने आपको कहा था कि कोई भी दुष्ट आत्मा आपसे सामर्थ्यशाली नहीं। No demon is powerful than you. कोई भी शैतान आपसे सामर्थ्यशाली नहीं। You are powerful because you have the Holy Spirit. आपके पास सामर्थ्य है क्योंकि आपके पास पवित्र आत्मा है। Say, I am powerful because I have Holy Spirit inside me. कहे कि मेरे पास सामर्थ्य है क्योंकि मेरे पास पवित्र Come आत्मा on, है। come on, come on, come on. You are powerful because you have Holy Spirit inside you. आपके पास सामर्थ्यशाली है क्योंकि आपके पास पवित्र आत्मा है। No Superman, no Batman is powerful than you. You are powerful because you have the Holy Spirit. कोई सुपरमैन कोई बैटमैन आपसे सामर्थ्यशाली नहीं, आपके पास पवित्र आत्मा है, आप सामर्थ्यशाली हो। Oh, ri baba baba shandalana ma sakanare. As I'm speaking this over your life, और जैसे मैं आपके जीवन के ऊपर ये बोल रहा हूँ, God is filling you with His strength. परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से आपको भर रहा है। God is filling you with His strength. परमेश्वर आपको अपनी सामर्थ्य से भर रहा I है। pray for you that may you start your day right. और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप आपका दिन एक अच्छी रीति से शुरू I करें। pray that may you end your day right. मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप आपका दिन जो है सही रीति से समाप्त करें। People of God, night time is a night of temptations. और रात का समय ये परीक्षा का समय होता है। Night time, many times the thought comes in your mind. रात के समय बहुत सी चीजें आपके मन में आती You है। know, sometimes devil try to play with your mind in the night. और शैतान बहुत बार आपके मन के साथ खेलने की कोशिश करता है रात में। And in the night when you sleep, you see the same type of dreams then. और इसी रीति से जब आप सोते हो तो आपको उस प्रकार के स्वप्न आते And हैं। you wake up with a mood off. और आप जो है फिर से मूड ऑफ करके उठते हो। And then you give it a name that, oh, just my mood is off. No, no, no. Devil has turned it off. और आपको लगता है कि मेरा मूड ऑफ है, नहीं, लेकिन यहाँ पे शैतान ने आपका मूड ऑफ किया। Now it's time to turn off the devil. और ये समय है कि हम शैतान को उसे समाप्त करेंगे। We are uprooted in the name of Jesus. हम उसे उखाड़ फेंकते हैं यीशु मसीह के We नाम are से। uprooted in the name of Jesus. हम उसे उखाड़ फेंकते हैं यीशु We मसीह are के नाम से। uprooted in the name of Jesus. हम उसे उखाड़ फेंकते हैं यीशु मसीह के नाम Say, I am से। washed with the blood of Jesus. कहे कि मैं यीशु के लहू से धुला Say, I हूँ। am washed with the blood of Jesus. कहे कि मैं यीशु के लहू से शुद्ध I किया गया am हूँ। washed with the blood of Jesus. कहे कि मैं यीशु के लहू से शुद्ध किया गया I हूँ। am purchased with the blood of Jesus. मुझे यीशु के लहू से मोल लिया गया है। Come on, declare this. I am washed with the blood of Jesus. मैं चाहता हूँ कि आप इसे घोषणा करें कि मुझे यीशु के लहू से मोल लिया गया है। I am washed with the blood of Jesus. कहे कि मुझे यीशु के लहू से धोया गया है। I am purchased with the blood of Jesus. मुझे यीशु के लहू से मोल लिया गया है। And I am redeemed by the blood of the Lamb. मुझे भेड़ के लहू के द्वारा जो है फिर से खरीदा गया है। Hallelujah. I am redeemed by the blood of Jesus. मुझे यीशु के लहू से मुक्त फिर से किया मुक्त किया गया है. है। Hallelujah. And I have the gift of righteousness. और मेरे पास धार्मिकता का वरदान I है। have the gift of righteousness. मेरे पास धार्मिकता का वरदान है। Come on, say this. I am the gift of righteousness. कहे कि मेरे पास धार्मिकता का वरदान है। I am the God's righteousness. मेरे पास परमेश्वर का धार्मिकता है। मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं। I am the gift of righteousness. I am the God's righteousness. और मैं परमेश्वर का धार्मिकता हूँ। मैं I उसकी am no सत्ता- more a sinner. मैं कोई पापी नहीं। I shall not be easily offended. मैं कभी भी आसानी से ठोकर नहीं खाऊंगा। Come on, say this. I shall not be easily offended. कहे कि मैं कभी भी आसानी से बुरा नहीं I मानूंगा। shall not be easily offended. मैं जल्दी से कभी भी ठोकर नहीं I खाऊंगा। shall not be filled with the poison of offense. और मैं उस ठोकर के श्राप से जो है उसके पॉइजन से नहीं भरूंगा। Come on, people of God. If you don't confess it, devil will keep trying to entangle you in the same stuff. अगर आप इसे कबूल नहीं करेंगे तो मैं आपसे कहता हूँ शैतान आपको फिर भी उस समस्याओं से भराएगा। Declare it. Confess it. उसे घोषणा करें, उसे कबूल करें। There is power in your confessions. आपके कबूल करने में सामर्थ्य There है। is power in your declarations. आपके कबूल करने में वो सामर्थ्य है। Oh Jesus, Ibrada Mashandede, Lekala Masandoro, Librada Mashandoro, Riba Baba Baba Shandede. Roba Mama Shakala Namando. मेरे मन में तू ही तो, मेरे नजर में तू ही तो,
मेरे होठों पे तू ही तू, मेरे दिल में तू ही तू, मेरे मन में तू ही तू, मेरी नजर में तू ही तू, मेरे होठों पे तू ही तू, मेरे दिल में तू ही तू। हो जय यीशु, जय यीशु, हो जय यीशु, हो जय जय यीशु, जय 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 यीशु, हो जय यीशु, हो जय यीशु, हो जय जय यीशु। मेरी आत्मा में, मेरी आत्मा में तू ही तू, मेरी भक्ति में तू ही तू, मेरे गीतों में तू ही तू, मेरे दिल में तू ही तू, मेरी आत्मा में, मेरी आत्मा में तू, मेरे प्राणों में तू, मेरे प्राणों में, मेरे प्राणों में तू ही तू, मेरे बातों में तू ही तू, मेरी बातों में तू ही तू, हो मेरे दिल में तू ही Come on, मेरी आत्मा में one more time, मेरे आत्मा में तू ही तू, मेरे प्राणों में तू ही तू, मेरी प्राणों में तू ही तू, मेरे बातों में, मेरी बातों में तू ही तू, मेरे दिल में तू ही तू। Come on, church, everyone. यीशु, Lift up your voices. जय यीशु, Oh, जय यीशु, जय जय यीशु, Yeshu, Ori Baba Ba Sandara Nama. जय यीशु, जय यीशु, जय जय यीशु। आखिरी बार सिर्फ आपकी आवाज बोलो, जय यीशु। Come on, everyone. जय यीशु। Come on, उसी आवाज में बोलो जय। मेरी आत्मा में, आत्मा confess this. मेरी बातों में तू ही तू, दिल में तू ही तू, मेरी आत्मा में तू ही तू, Come on, everyone. मेरी सांसों में तू ही तू, मेरे बातों में, मेरी बातों में तू ही तू, मेरे दिल में तू ही तू, जय यीशु, जय यीशु, जय
यीशु हो जय जय यीशु जय जय यीशु Oh, Jai, Jai Yeshu. I believe the presence of God has already taken control of your life. मेरा विश्वास है कि परमेश्वर के सामर्थ्य ने आपके जीवन के हर एक क्षेत्र पे काबू किया है। I believe that you shall not be offended easily and not be under the oppression of the evil spirit. और मेरा विश्वास है कि पर आप जो है किसी भी चीज से जल्दी से ठोकर ना खाएंगे या फिर किसी भी चीज से आप निराश नहीं होंगे But जल्दी, every one of us have a mind of Christ. क्योंकि हर किसी के पास मसीह का मन Come होगा। on, confess it. I have a mind of Christ. आइए कबूल करेंगे कि मेरे पास मसीह का मन है। Say this, I have a mind of Christ. कहे कि मेरे पास मसीह का मन है। I have, my family has a mind of Christ. कहे कि मेरे परिवार के अंदर मसीह का मन है। Come on, confess it over your partner. My wife has a mind of Christ. अपनी साथी के ऊपर, जीवन साथी के ऊपर My कबूल कीजिए, husband जीवन has a mind of Christ. कहे कि मेरी पत्नी के ऊपर, पति के ऊपर जो My children मसीह have का the मन है। mind of Christ. मेरे बच्चों के ऊपर मसीह का मन है। Hey, you are doing something powerful. देखो आप कुछ My सामर्थ्यशाली brother has कर a रहे हैं। mind of Christ. मेरे भाई के ऊपर मसीह का मन My है। sister has a mind of Christ. मेरे बहन में मसीह का मन My है। parents have a mind of Christ. मेरे माता पिता में मसीह का मन है। My loved ones have a mind of Christ. मेरे प्रियजन में मसीह का मन है। You have confessed the mind of Christ over your people. और आपने अपने लोगों के ऊपर मसीह का मन को कबूल किया है। This will streamline many things for you. और ये आपके लिए एक सामर्थ्यशाली बात होगी। This will streamline many things for you. और ये आपके लिए बहुत सी चीजों का एक सोरता बनेगा। Father, I pray for everyone right now. और मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर के, In the name of Jesus, यीशु मसीह के नाम से, every person under the influence of my voice हर एक व्यक्ति जो मेरी आवाज को सुन रहा है, have the strong mental health. हर किसी का एक सामर्थ्यशाली मानसिक May they बल have a होगा, strong spirit. एक सामर्थ्यशाली आत्मा होगी, Spirit of boldness. धैर्य की आत्मा, Spirit of courage. हिम्मत की आत्मा, Strong soul. एक सामर्थ्य प्राण, And which will result in the strong body as well. No sickness in the body. और कोई भी बीमारी नहीं होगी शरीर में। Many times the sickness enters because you have not strong mental health. और बहुत सी बीमारी आपके जीवन में आती है क्योंकि आपका प्राण जो है वहाँ पे सामर्थ्य नहीं है। High blood pressure because of you easily getting angry. और अच्छा ज्यादा ब्लड प्रेशर होता है क्योंकि आप जल्दी से गुस्सा हो जाते हो। Arthritis because you have grudges inside you. और अर्थराइटिस होता है क्योंकि आप लोगों के ठोकर को अंदर लेके चलते हो। There are many things which is because of mental thing. और बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो मानसिक समस्या से मेल खाती है। Today, आज God has delivered us all from it. परमेश्वर ने आज आप सभी को छुटकारा दिया इस सब You चीजों will से। definitely have a testimony. आपके पास सच में गवाही होगी। You are not a sinner, but you are a righteousness of God. आप कोई पापी नहीं लेकिन परमेश्वर की नजरों में धर्मी हो। Come on, one more time say, I am not a sinner. फिर से कहेंगे कि Come on, मैं say this, I am not a sinner. कहे कि मैं पापी नहीं, I am a child of God. मैं परमेश्वर का बेटा हूँ। God is my father. पिता मेरा परमेश्वर है And he sees me as his child. और वो मुझे बेटे के समान दिखता है। I am a righteousness of God. मैं परमेश्वर का धर्मी हूँ। I am washed with the blood of Jesus. मैं यीशु के लहू से धुला हूँ। I am purchased with the blood of Jesus. मुझे यीशु के लहू से मोल लिया गया। Holy Spirit lives inside me. यीशु पवित्र आत्मा मेरे Say, अंदर Holy Spirit lives inside me. गए पवित्र आत्मा मेरे अंदर रहता है And I shall walk victorious all the days of my life. और मैं मेरे जीवन के हर एक दिन में विजय से भर के रहूंगा। Jesus' mighty name. यीशु Everyone, मसीह के God's नाम people से। say. और परमेश्वर के Amen. लोगों ने कहा